जी अस्सलाम वालेकुम respected participants, Professor Madam Zaida Rani. I thank a lot for being here, Dr. Faria, Dr. Lukman, my old colleagues, and we have been trained together. So it's a great honor to be, presenting my, sharing my knowledge, whatever experience I have. But let me tell you, it's a continuous learning process, and I'm still learning. So it's just whatever best I can give you regarding the practical application and practical demonstration of the fillers. I hope you are all attentive. This is the time because really need your attention. You have all now listened to a very state-of-the-art lectures, and now you have knowledge of anatomy and the biofillers and how to, what complications we can expect from fillers. But what I am doing actually, first of all, rather I'll thank my patient to, she's been very cooperative, and she's also a trainer in the gym. So she has agreed to, get filler injected. We are covering two areas today, the cheek area and the nasolabial fold. Both are challenging, and especially when we talk about nasolabial folds, it can cause lot of complication in that respect. Looks easy for beginner, yes. We always tell doctors to start with nasolabial fold, but still, as you have gone through these presentations, you must have learned that if you need to be careful, and you should be very, very good in your anatomy and should have command on that. So first of all, beginning with the filler, if you are coming into this thing and trying to inject filler, start with low G prime, and there are three things which I want to revise. These come across these terminologies like viscosity, elasticity and cohesiveness. Now let's be practical about this thing. What is this? When you are injecting with the filler, though you know the viscosity and all that thing, just try to take out few of the drops of that filler. That would give you idea of actually viscosity, how much easily you can push, and that shows your resistance. So always do that. I personally do it because I know where to inject, and the area which I am actually injected, it might show resistance, so you know how much you have to push. Sometimes you push hard and then you tend to lose your filler also. Secondly, if you're trying to force and then the viscosity is high, you haven't assessed it, you tend to push it, and that is one of the things which can cause complication, because it should not be with the force, it should go lightly. And if you are in the light plane, then you face less resistance, but if you are in the wrong plane, obviously you try to push it, and don't get so, at times you become a little more enthusiastic, so don't put much of pressure. If it's showing resistance, take out your needle or cannula and then re-inject it. So these are the few things which you should keep in mind. Selection of fillers, the site you are actually injecting, you need to plan. And above all, please try to have a conversation with your patient. What are his or her expectation out of this treatment which you are going to do, and how far you can improve things. So you should have a detailed discussion. What are the expectation of patient, because you cannot bring miracles, you can just improve things. So your patient should be knowing it. Plus, you need to know what sort of metabolic problems or other problems she is suffering from. That is very important. Maybe she is chronically diabetic. Your filler might not last more, or she is under some thyroid problem or other metabolic problem. So in that case, if you're talking about like 6 to 8 months filler, no, it might last for 3 months, or she's a vigorous, on a diet plan or something like that. So it might give you, not after 3 or 4 months, your filler might not really giving that patient satisfaction, and she might turn up to you that filler is no more giving that effect on face.
Secondly, there are two things which I like to mention here. मुझे वो lights कर रहे हैं, मुझे कैनुला चाहिए और एक वो needle चाहिए. When you are injecting a filler, these two things which you need to play with. What is this? I mean, this is sort of an interactive session. This is a cannula and a needle. So your selection, whether you will inject with cannula or you will inject with a needle, that depends, number one, on the site or the area which you are going to inject. There are certain areas where cannulas are a better option, which we discussed and we have already discussed, and some areas where needle is a better option. If you want to localize a lesion or the area which you are treating and you want to be very specific that you should drop your filler on that site, then needle is a better option. And secondly, if there is a vessel, long vessel going on, like we are talking about the angular artery and we talked about the facial artery, in that case, cannula is a safe option because chances of occlusion are much lesser than the cannula, what studies have shown. There are few exceptions. Time is short, but I'll try to, which I keep in mind. Supposedly you are going in the temporal area. So superficial temporal artery is like, for me it's like I can see through the skin. It's a 3 to 4 millimeter below the hairline usually. Okay, this side. So if you are going with the cannula on this side, the chances of occlusion are more. Okay, just tell you. So here you would keep the direction like this rather than going like this. Most of the people tend to inject in this direction, which increase the chances of occlusion. So this is superficial temporal, and if you want to inject or fill this temporal area, and I'll tell you the importance of injecting it, especially with cheeks. So you tend to go at the right angle. Here the anterior temporal arteries are deep, as we mentioned. So here you can inject with the fanning technique. But once you are going in this area, you move in the, so that is one of the drawbacks of cannula. Secondly, secondly, you are playing with the gauge and the length of the cannula. If there is longer area, like supposedly you're injecting in the nasolabial fold, you need a longer cannula with 50 mm size or so. In that case, you will use a cannula with the lesser gauge, so it has a bigger opening, right? So your filler would not show much of resistance in that case, and you can easily inject. Either you will be playing with less viscosity, and if you are going with the high G prime, you will use a larger cannula with the smaller gauge, so that your filler would not show much of resistance and the chances of occlusion or any complication are lesser. So these are few things. And if you are injecting or around the injecting the tear trough using a smaller cannula or just under the eye, with experience you can do those areas. Here you use a smaller cannula, and there, yes, you can use a cannula with larger gauge. It can be like 27, sometimes even 30. So that because the size of the cannula is small. When the size is larger in size, obviously you need lesser gauge so that opening is wide and distance is less, so you can easily play with that. Second drawback of a larger cannula, if it has more flexibility and if it has a larger gauge, it tends to bend. All right. So it tends to bend, and sometimes, you know, if you are pushing too much, it can be broken inside the skin. That becomes a real complication. Then you have to incise, because sometimes it's very difficult to draw it back. So usually with larger size, longer length of cannula, you play with smaller gauges. That is something which you need to keep in mind. Similarly with the needle, if you are playing with the smaller gauge needle, it is safer, but it can cause more of bleeding. But with the larger gauge needle, like 27, 30 gauge, chances of, as Dr. Sadia has very well demonstrated, chances of occlusion
is greater. So use a needle with smaller gauge and larger bore. So that causes less chances of occlusion. It might cause hemorrhage or can cause bleeding, but chances of occlusion as such, which causes necrosis, is more with needles of larger gauge. The smaller bore, smaller size. So, and obviously at that point, because it is a smaller opening, you tend to put more pressure on that, right? So with larger pressure or with larger bolus of filler, you tend to occlude the vessel. So that is this is something basic. Now we are going to demonstrate practically on this patient. जी इजाज़त है, इंशाल्लाह ये स्टार्टिंग. तो ये थोड़ा सा इंटरेक्टिव वो स्पिरिट स्वैप से हो गया. Any questions, anything which you have in mind up till now, and then we practically demonstrate. Will we see you doing the procedure on the big screen? स्क्रीन पे आ रहा है ना? हाँ, but ये important points जो मैंने mention किए वो please आप ज़रूर जहन में रिवाइज करें, because you always need to keep these points in mind before you inject a patient. Secondly, अब हम जब पेशेंट पे डेमोस्ट्रेट करने लगे, you need to study your patient के what type of face he or she has got. Male has generally different demands as compared to female. अगर हम चीक एरिया की बात करें तो जो मेल चाहता है उसके चीक जो हैं वो जब हम इंजेक्ट करते हैं तो आप जहन में एस्थेटिकली सोचें कि वो अपवर्ड और इस टेंजेंशियल में नहीं जाएगा, वो he will look for more straighter look, right? Female would like to have an inclination on that side. ये aesthetics है. और दोनों का जो पॉइंट पिवट पॉइंट जो आपने करना अभी जो हम मार्किंग करेंगे उसमें एक एस्थेटिक्स की बेसिक पॉइंट है, वो है कि जो नेचुरली आई डोंट नो इट्स एक्सेप्टेड बट दिस इज सम दैट इज अ वी शेप. तो हम जब मार्किंग करेंगे तो आपने जो चीक एरिया है उसको आपने ये जुमला याद रखना है कि इट इज नॉट फिलिंग ऑफ द चीक, इट इज एन इल्यूजन ऑफ फिलिंग द चीक. सी द डिफरेंस. अगर आप चीक फिल करेंगे ना तो आप एक बम्प सा बना देंगे एंड यू टेंड टू शॉर्टन द आईज, स्पेशली व्हेन पेशेंट स्माइल्स. दैट इज द फेलियर ऑफ योर एस्थेटिक्स. इफ एनीबॉडी कैन really ask you, have you done your filler in the cheeks? तो इसका मतलब है कि your aesthetics has failed almost. Yes, you look fresh, you look young. These are the comments which patients like to hear. But if somebody really points out that you have done a filler, something, so that is. तो cheek को करना, I tell you honestly, this is something which you really need to know, and I am still obviously I'm very careful when doing cheeks because that is the main index of face and that gives perception how things go. Now if we can you see her? डॉक्टर तारिक, आपने सबसे यंगेस्ट पेशेंट किस एज का किया जिसने अपने एस्थेटिक पर्पसेस के लिए करा? For cheek filling? फिलिंग या फेस पे फिलर्स? फेस पे तो आई थिंक 25 24 पे शुरू हो जाता है. नेजोलेबियल तो शुरू हो जाता है. चीक्स का तो है वो 30 में हो जाता है क्योंकि आपका. तो अभी हम जैसे अब इस फेस को करें, मैं थोड़ा सा आप लोगों का इनपुट चाहता हूं. आप में से काफी लोगों ने दे हैव गॉन थ्रू फिलर्स, ऑब्वियसली दे आर इंजेक्टिंग फिलर्स. तो अगर हम थोड़ा सा टर्न कीजिएगा फेस, आपको क्लियर नजर आ रहा है? इनके चीक पे आपको आप क्या कह सकते हैं कि क्या एरिया है विच नीड्स टू बी इंजेक्टेड? सॉरी, थोड़ा बैठ जाए, थोड़ा सा बैठिए. हाँ सॉरी, थैंक यू. हाँ ये दिस इज बेटर. अच्छा, अब आप देख रहे हैं आप क्या समझते हैं कि इनके चीक पे क्या फिलर कहाँ होना चाहिए, या थोड़ा सा फिलर्स का क्या कहाँ हम बेहतर इसको इंजेक्ट कर सकते हैं? वही ग्लासेस. अच्छा मेरे पास. यस, गुड. जो लाइव दिखा रहे हैं अगर सामने से यहाँ से दिखाएंगे, आप सिर्फ एक एंगल दिखा रहे हैं फेस का. हाँ. यहाँ से दिखाएंगे तो पूरा सबको बहुत अच्छा विजिट. आप यहाँ से हाँ. बिठा के करेंगे या अभी बिठा के करेंगे? आप यहाँ पे जो मुझे मार्किंग पेंसिल दे दें तो
फिर लीजिए वो भी चेंज कर दीजिएगा। दोनों, हाँ, और एक वो दीजिएगा, रेड मार्कर तैयार रखें, एक ब्राउन दे दें। So basically, your procedure has got two parts: the planning and actually injecting the filler. And in planning, marking of the area plays a vital role, because without markings you cannot plan your filler, where to inject which amount of filler and which type of filler. So you need to actually assess the area and the defects which we can improve. So एक तो डॉक्टर लुकमान ने कहा कि इनके टीयर ट्रफ है, सो ऑर्बिकुलरिस रिटेनिंग लिगामेंट को आप देखें, ये एरिया इनका फॉलो है। अब आप थोड़ा सा, मैं इसलिए ज़रा प्रैक्टिकली लेके जा रहा हूँ बिकॉज आई रियली वांट यू टू गेट ट्रेंड इन दैट। ये इनका चीक एरिया है, अगर सपोजली हम इसको यहाँ फिल कर देते हैं तो ये ऐसे करके एक वो बन जाएगा, और ये जो आपका टीयर ट्रफ का एरिया है और आपका ये जो टेम्पोरल एरिया है ये आपका और रिसेस्ड लगेगा, तो हाउ कैन इट रियली मैच द एस्थेटिक्स? ये नहीं। एंड यू आर द पर्सन हु नीड टू एक्चुअली एजुकेट पेशेंट के। आई मीन दिस इज समथिंग विच I just cannot go on single area and make you, more beautiful or more younger than that. ये लाइट थोड़ी सी और बेहतर हो सकती है। अच्छा, एनीवेज, अब हम चीक एरिया के लिए हम मार्किंग कर रहे हैं, उसके बाद हम फिर फर्दर उस पर सेकेंड उस पर आएंगे। अच्छा, मेरा जो मार्किंग का है वो डिफरेंट लाइंस हैं, आप उस पर अभी ना परेशान हो गए, बहुत सी मार्किंग्स आएंगी। सबसे पहले आप 3 एरियाज में बेसिकली डिवाइड कर लें, ओके? और फिर अभी आपको जो सारे लेक्चर्स मिले हैं उसकी आपको डेमोन्स्ट्रेशन फिर वो आपको वो रिकॉल करना है। ठीक हो गया? ये फेस आपको जनरली, मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूं कि ये आपको किस किस्म का फेस लग रहा है, वो सिंपल वर्ड्स में आप डिस्क्राइब करें पहले, क्योंकि मैं भी जब फिलर करता हूं मैं पेशेंट को जहन में सोचता हूं कि ये मैं इस फेस को कहां कैटेगराइज कर रहा हूं। मिडिल एज, लीन फेस एंड लॉस ऑफ डीप फैट पैड्स, स्पेशली सुपरफिशियल फैट पैड्स तो हमने नहीं उतना छेड़ना। ठीक हो गया? सुपरा ऑर्बिटल फोरम है, मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करना शुरू करता हूं। मुझे एक मार्कर भी दे दें। जब आप एस्थेटिक्स के लिए करते हैं तो पेशेंट की एक्सपेक्टेशंस और प्री फोटोग्राफ इसमें देखिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सिमेट्रिकल नहीं होते, हमारा फेस बहुत कम है कि टोटली सिमेट्रिकल होगा। ये सिमेट्री है, थोड़ा सा एक साइड का साइज बड़ा होगा, एक साइड सा कम होगा वॉल्यूम, तो आपने बुक के हिसाब से नहीं चलना कि अगर मैंने एक साइड पे 0.1 डाला है तो दूसरी साइड पे 0.1 डालूं। पहले असेस करना है पेशेंट को और उसके हिसाब से आगे चलना है, और पहले पेशेंट से अच्छी तरह उसका फीलिंग से डिस्कस कर लें, क्योंकि ये बहुत दफ़ा हुआ है कि एक आपके माइंड में पिक्चर है जिसके हिसाब से आपने फेस करेक्ट कर दिया, उसके बाद मरीज ने कहा कि मुझे तो ये क्या करना आपने मेरे साथ, ठीक है ना? तो एसिमेट्री पहले डिफाइन करनी है, मरीज को पहले बताना है कि ये हमारे फेस में एसिमेट्री है, रेड मार्कर, उसके बाद फिर आपकी डायरेक्शन शुरू करना। लाइट
चेंज कर रहे हैं पेंसिल तैयार रखी। ये हमने सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन को पहले एक मार्क कर लिया, मैं वो लेता हूँ, मैं आयरस और उसको भी नहीं जाता पर्सनली, मैं अगर जिस तरह कर मुझे पता है कि मैंने सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से वो करना है, फिर मैं आपको मार्किंग पॉइंट्स इसके चीक एरिया के बताता हूँ। आर यू विद मी पीपल? ओके। सबसे पहले हमने जिस तरह डेंजर जोन को मार्क करना है तो हमने सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन को मार्क कर लेना है। इसी तरह सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से आप लीजिएगा इसको नीचे, अगर हम यहाँ दोबारा इसको हाईलाइट करते हैं, ये आपका इंफ्रा ऑर्बिटल रिम आ रहा है, ऑलराइट, ये मुझे इंफ्रा ऑर्बिटल रिम। नाउ व्हाट आई डू इज कि अगर मैं सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन से इसको क्रॉस करूं और स्किन को आपने थोड़ा सा स्ट्रेच करना है और यहां आपने फील करना है इंफ्रा ऑर्बिटल मार्जिन, इससे तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 0.5 to 0.8 मिलीमीटर यहां आपका सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन है, इंफ्रा ऑर्बिटल। तो हमने एक अपना डेंजर जोन मार्क किया है फिलर के लिए। ठीक है जी, ये वो आपका एक ऐसा जोन है जिसको आपने सेव करना है, राइट। तो हमने पहले इसको मार्किंग पॉइंट दे दिया। मार्किंग अब हम क्योंकि चीक को प्लान कर रहे हैं तो हमने 3 एरियाज पे खेलना है, लैटरल कैंथस तक, फ्रॉम लैटरल एलाई नोज, then tragus, and from lateral oral commissure अब हम सुपीरियर ट्रेगस से जाएंगे लैटरल एलन नोज तक। अच्छा, अब ये ज़रा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ अभी। ये सुपीरियर ट्रेगस पॉइंट्स इज अच्छा, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कीजिएगा। इफ द फेस इज लीन, डिफरेंट ट्रेनर्स का आपको डिफरेंट मिलेगा, तो हम ज़्यादा लैटरल कैंथस से, लोग वैसे लैटरल कमिश्योर की तरफ, जो मैं इसको स्ट्रेट लाइन लेके आता हूँ चीक पीक उसके एपिक्स को फाइंड करने के लिए, और अगर थोड़ा सा ज़्यादा चबी फेस है तो लैटरल रिम ऑफ द ऑर्बिटल रिम से, लैटरल मार्जिन ऑफ द ऑर्बिटल रिम से आप उसको स्ट्रेट लाइन खींचें। ये प्लीज मैं इसलिए थोड़ा सा यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ कि दोनों पॉइंट के लीन फेस है, तो प्लीज मैं दोबारा कहा कि लैटरल कैंथस से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। अगर आपका थोड़ा सा चबी हैवी फेस है तो आप मार्जिन ऑफ द ऑर्बिटल रिम से लैटरल स्ट्रेट मार्क करें। प्लीज ये मार्किंग से ना घबराइएगा, बिकॉज इसके बगैर फिर वो टीचिंग को समझ नहीं आता। वैसे तो आप जब एक्सपीरियंस हो आपको पता होता है अच्छा मैंने इन पॉइंट्स पे रहना है। सो रेड दीजिएगा, ब्राउन, नहीं वो पेंसिल। अब हम इसको दोबारा से आपके लिए क्लियर करने के लिए यार ये
मार्कर यार नहीं फिर मिटाना है। इनका जो चीक पॉइंट एपेक्स आ रहा है मेरे हिसाब से ये जो आपको सही लगे ये वाला जो पॉइंट है सेकंड, और यहाँ अभी हम आपको मार्किंग दोबारा करेंगे, थोड़ा सा आपको बताते हैं कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस है इनके केस में। ये एक दफ़ा फिर बता दें कि आपने यहाँ पॉइंट कैसे, मतलब लाइंस कौन सी ड्रॉ की हैं जिनके ये देखें लेटरल साइड ऑफ द नोज पे एलरनेजाई से हमने अगर सुपीरियर ट्रैगस तक गए हैं तो ये इस तरह से लाइन बनेगी यहाँ से, और ये तकरीबन यहाँ आके ज्वाइन हो गई, राइट। और इसी तरह यहाँ से फिर हम अगर जाते हैं तो एक मिनट सॉरी, ये ट्रैगस का भी थोड़ा सा हेरी है, तो यहाँ से ये जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। जी ठीक है जी, क्लियर। ये इंजेक्ट करने का पॉइंट जी अभी आ रहा हूँ उस पर, अभी वो ऐसा ऐसा डिफरेंट मोड्स ऑफ, ताकि चीक को हम और बेहतर प्लान कर सकें। अभी मार्किंग पेंसिल से ही सही। पेशेंट की मेन कंसर्न ये है कि उनकी चीक्स जो हैं वो ज़्यादा वॉल्यूम लिफ्ट अप हो जाएं, लेकिन खाली चीक को जैसे मैंने कहा कि इट शुड इल्यूजन शुड बी क्रिएटेड रादर देन फिलिंग द चीक। तो अब हम जो मैं अब पॉइंट्स पे इसको जो स्पेशल रनिंग पॉइंट है, अब इजी वे ये है कि हम यहां एक सर्कल ड्रॉ करें। अब आप देखें कैसा मैं आपको मजेदार इसका आपको एंजॉय कराएं। अब आप देखिएगा कि इसके क्वाड्रेंट्स बन गए, लोअर मीडियल, लैटरल, सुपीरियर एंड सुपीरियर मीडियल। ये एरिया को मैं फीलिंग के हिसाब से जरा क्रॉस कर देता हूं, क्योंकि ये इट विल प्रोजेक्ट दी सूफ जो भी जिक्र किया था, सब ऑर्बिकुलरिस, ऑकुलर फ्रैक्ट। और जहां तक ये इसका है ताल्लुक टीयर ट्रफ का, टीयर ट्रफ के लिए एक छोटा सा इंपॉर्टेंट क्लू है, वो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं। प्लेस अ फिंगर हियर जस्ट बिलो द ऑर्बिकुलरिस रिटेनिंग लिगामेंट एंड ट्राई टू लिफ्ट इट। अगर आपको लगे कि आपका टीयर ट्रफ जो है वो बेहतर हुआ है, आपका गैप खत्म हुआ है, तो वो तो दैट इज समथिंग विच वेयर यू कैन इंजेक्ट और ट्रीट द टीयर ट्रफ, अदरवाइज डोंट ट्रीट इट, क्योंकि कई दफा फैट बल्ज हो जाता है। तो शी इज द कैंडिडेट जिनका टीयर ट्रफ हम बेहतर कर सकते हैं और करना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। बिकॉज खाली चीक को करेंगे तो ये एरिया फिर भी बड़े हॉलोड लगेंगे, और अगर थोड़े पास हमारे फिलर की तरह कैपेसिटी होती तो हम फिर टेम्पोरल एरिया को भी फिल करते, क्योंकि ये इस तरह से ये सारा जोन चलेगा। एनीवेज अभी हमने ये हमने फिंगर रखी और उसको थोड़ा सा लिफ्ट किया। किया। अगर आपका टीयर ट्रफ बेहतर हो जाए तो इट मीन्स कि आपका टीयर ट्रफ ट्रीट होने वाला है, अदरवाइज वो फैट बल्ज हो जाता है। आपको लगे कि थोड़ा सा वो ऑलरेडी होता है तो वो एडीमा आपको लगता है कि वो फैट बल्ज हो गया है। अच्छा, ये पर सर्कल आपको ठीक नजर आ गया। अब इसमें आपको एरिया और विजुलाइज होना शुरू हो गया कि किस क्वाड्रेंट में जरूरत है। इस क्वाड्रेंट में जो अब मैं आना चाह रहा था इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, कि इसका जो मीडियल फैट पैड है जो कि तकरीबन ज़ाइगोमेटिकस मेजर से शुरू होता है, समथिंग लाइक दैट, ये आपका तकरीबन मीडियल फैट पैड ये होता है, ये हॉलोड है। अगर आप खाली चीक को करेंगे तो वो फील नहीं होगा। इसका मतलब है कि हमें इस सर्कल में थोड़ा सा वो करना है, और इस सर्कल को और सेंट्रल, हम इस मीडियल क्वाड्रेंट पे ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम इन
एरियाज को ज़्यादा प्रॉपर इंजेक्ट करें तो हम सेफ हैं। थोड़ा सा पीछे अभी आपकी ज़ैगोमैटिक बोन है और आपने एनाटमी भी देखा, तो अगर मैं सॉरी किसी और कलर से ज़रा बनाऊं, नहीं ये ब्लैक नहीं हुआ, सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी और ये ट्रांसवर्स फेशियल आर्टरी, तो ये यहाँ से बोन के नीचे डिप करती है और थोड़ा सा फिर ऊपर लिफ्ट करती है, यहाँ एक ट्विक सी देती है। फेस को टर्न करते हैं इसकी तरफ। तो ये आपकी ज़ैगोमैटिक बोन का नज़र आ रहा है, ये ज़ाइगोमा, तो यहाँ से तकरीबन नीचे ये ट्रैवल करती है, यहाँ से डिप करेगी बोन के नीचे और फिर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आती है, कर्व करती है। अब एक को वो दीजिएगा, मार्किंग पेंसिल एक और दें। अब हम इसको और बेहतर अब चीक को प्लान करने लगे हैं, सॉरी अब इतनी मार्किंग, लेकिन चलो ये अब आपके जोन्स आ गए। अब हम इसके गिर्द एक ओवरलैपिंग जोन बनाएंगे और एक छोटा सा जोन बनाएंगे। अच्छा, अब एक इंपॉर्टेंट टिप देने लगा हूं सबको। ये आपकी आईब्रो नजर आ रही है, यहां आपको मैंने बताया कि सुपरफिशियल टेम्पोरल आर्टरी, यहां डीप एंटीरियर पोस्टीरियर टेम्पोरल आर्टरी, अंडर द टेम्पोरल फेशिया। फीमेल्स में अगर आपने चीक बोन फिल करनी है, तो अगर आपको नजर आ रहा हो, थोड़े से सॉरी देखिए, तो तकरीबन 2 to 3 मिलीमीटर तक अगर आप एक लाइन ड्रॉ करें, दिस वन, इससे पीछे आपका ज्यादा फिलर नहीं जाना चाहिए। आपका लास्ट पॉइंट ऑफ फिलर जो है वो तकरीबन यहां होना चाहिए, उससे पीछे आपका फिलर नहीं जाना चाहिए। वो फिलर होगा तो फिर वो और ज्यादा, जैसे मैंने कहा कि वो फिल्ड लगेगा और आपका टेम्पोरल रिसेशन और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगी। तो ये एक डिमार्केशन लाइन है तकरीबन 3 to 4 मिलीमीटर बिहाइंड द आईब्रो। इफ यू ड्रॉ अ लाइन, तो इससे पीछे आपका फिलर नहीं जाना चाहिए ऑन द ज़ाइगोमैटिक बोन। अब ज़ाइगोमैटिक बोन को अगर आप एनाटॉमिकली देखें ना, तो ये ज़ाइगोमैटिक बोन है जो आपको नजर आ रही होगी, यस, और इसके ऊपर एक कर्व होता है अक्सर यहाँ बोन पे। तो यहाँ हम एक छोटा सा इंजेक्शन दे सकते हैं। ये लाइन आपके पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर आ गया, ये हमारा ओवरलैपिंग एरिया, और ये हम यहाँ थोड़ा सा मीडियल फैट पैड को भी कर रहे हैं। ओके, तो हमने कितनी मार्किंग के बाद हम यहाँ तक चीक तक पहुँच गए। लो जी फिलर अब, तो ये छोटा सा ठीक हो गया, कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? सर ये 4 पॉइंट्स बन गए जो हमने फिलर लगाना। हाँ, ये छोटा पॉइंट आपने रखा होता है कि आप जब कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली, तो आप कहते हैं कि बैलेंस हो रहा है कि नहीं होता, क्रिएट सिमेट्री। आप कहते हैं अच्छा यार यहाँ मैं थोड़ा सा इंजेक्ट, दैट इज एक्चुअली एट द टाइम ऑफ प्रैक्टिकली डूइंग इट कि वो कितना लिफ्ट करता है। मीडियम प्राइम चलिए बिठा कर खैर से। So we are using a needle because we want to be very precise in the area. We want to be very localized, so we are injecting in that respect. टैटूइंग का कितना चांस है कि इतने सारे हमने मार्किंग की हुई है, तो वो पिगमेंट अंदर हम डाल दें और टैटू हो जाए। मैक्रोफेजेस जिंदाबाद में। जिंदाबाद। मैंने कहा साफ करने की जरूरत तो नहीं है। रेडी, गॉज वगैरह रेडी रखें। नहीं अभी एंगल सही बन रहा है, बताएं इसको थोड़ा सा ऊपर करें। नहीं पहले ये सेट हो जाए। अच्छा अच्छा सॉरी, ठीक है, थोड़ा सा हेड थोड़ा सा ऊपर कर लें। हाँ जी ऊपर कर हेड एंड रेस करें तो थोड़ा 40। गॉज मुझे भी दे। अब हम जरा फिलर एक दफा ताहिर एक दफा समझा दें कि आप किस पॉइंट पे कितना इंजेक्ट करने लगे हैं और फिर लगा दें। देखिए अभी तो इसके हिसाब से मैं, जैसा मैंने कहा ऑलवेज गो फॉर अंडर करेक्शन, तो मैं अप्रॉक्सीमेटली 0.1-0.15 cc सेंटर पॉइंट पे करूंगा, उसके साथ फिर रेशो कैलकुलेट करूंगा। अगर मैंने यहाँ
0.1 से थोड़ा सा ज़्यादा किया है तो वहाँ एग्जैक्टली 0.1 करूँगा मीडियल फैट पैड पे, और फिर उसके बाद 0.05 और इस तरह से मैं पीछे जाऊँगा ताकि मैं उसके साथ बैलेंस कर सकूँ। और आपके पास फिलर कौन सा है सुगर? ये मेरे पास मीडियम जी प्राइम का है। हाँ, और इसमें क्वांटिटी 1 ml है? ये 1.2 के करीब होती है एग्जैक्टली, वैसे ये शायद अप्रॉक्सीमेटली 1.2 है। और ये दिस क्वांटिटी इज एक और बहुत- sufficient enough to fill her both of her cheeks? नहीं, आइडियली नो, बट हाँ मतलब 1 cc वन साइड कैन ईजिली बी इंजेक्टेड, लेकिन हम वहाँ क्योंकि अंडर करेक्शन चीज़ें हमारे पास वो ज़रा थिंग्स टाइट एंड टुडेज सर्कमस्टांसेस ऑल्सो। तो इसकी वो हमें प्राइस बता दें इसकी। जल्दी, सॉरी, ठीक है। शी वुड नेवर कम टू मी अगेन। जी बिल्कुल, मैं अभी हाँ, मैं तो सब चीज़ें ऐसा ऐसा वो बड़े आराम से इनको, तो अभी हम इसको तकरीबन ऑलमोस्ट वी आर कीपिंग इट 90 डिग्री, और जो हमें पॉइंट्स सारे हमने बड़े अच्छे मार्किंग कर लिए हैं, सो वी आर डायरेक्टली ओवर इट। काइंडली एंगल ऑफ फ्रीडम भी देख लें आप, बेवल को भी थोड़ा सा फोकस करिए। ये डर्मिस पे है कि बोन के ऊपर है? जी ऑलमोस्ट बोन के ऊपर है जी, लेकिन मैं ताकि आप तो मास्टर हैं। लेकिन यूजली मैं बोन को टच नहीं करता, क्योंकि नीडल जो है वो उसकी ज़्यादा ब्लंटिंग हो जाती है और वो ज़्यादा प्रॉब्लम। रेडी? तो नहीं हो रहा। आपने नीडल होल्ड की हुई सही? टॉप एनेस्थीसिया विल वर्क। पता है आपने लॉक की थी? Now we are going for the medial fat pad. Approximately 0.1 cc. हाँ अभी देख, अच्छा है नीडल। और इंजेक्टिंग एस्पिरेट करके जरूर चेक करें। ब्लीडिंग छोड़े। हाँ वो मुझे अभी वो चाहिए, ये प्रेशर दे के रखिए। ये नजर आ रहा है थोड़ा सा, दिखाइएगा आखिरी, देखें चीज। ठीक है, प्रेशर ठीक। After injecting the filler for the first time, I mean one side, do not just put a force or thumb over it, just move it with 2 fingers, all right, because वो फिर अगर वैसे भी अगर थोड़ा सा लो elasticity का है उसका, तो थोड़ा सा वो फिर migration का वो, तो you tend to move like this. अच्छा एक चीज़ आपने नोट की कि यहाँ कोई एक्स्ट्रा बम्प नहीं, बिकॉज यू वर क्वाइट डीप और आपने एग्जैक्टली वो इंजेक्ट किया उसके साथ। अब हम दूसरी साइड पे करेंगे, फिर अगर पेशेंट डिमांड, वैसे तो खैर यहाँ तो ट्रेनिंग फॉर, अगर वो डिमांड और करता है देन यू गो फॉर द सेकंड फेज रादर देन इंजेक्टिंग इन द फर्स्ट एप्लीकेशन और फर्स्ट इंजेक्शन। यू डोंट गो फॉर मच ऑफ अ हायर अमाउंट बिकॉज you need to assess how the face looks and how practical it is going with the face or not. If it's very lean, you don't want to inject much of the filler amount. It need to be a little on the lower side. ये थोड़ा सा मार्किंग ज़रा अगर अब ऑफ कर दें
ये स्पिरिट सर्विस। ये नहीं चेक कर थोड़ा हिलाए ना बस थोड़ा सा। पेन तो नहीं हो रहा। वो हाथ रखते हैं तो कैमरे के अंदर। अच्छा गोल्स और सॉरी, आपका विजन क्लियर था इंजेक्शन के वक्त? अब हो। अच्छा, हमने एक वहां तक आपको क्लियर है जहां हमने आपको इजी करने के लिए सर्कल्स बनाए हैं, बिकॉज यू कैन प्ले बेटर विद दैट थिंग कि मैंने कहा किस मीडिया किस साइड पे मूव करना है। सुपीरियर और मीडियल साइड को आप अक्सर 90% निगेट ही कर रहे हैं। बहुत आपने कम करना हो तो सुपीरियर और लैटरल, वरना इंफीरियर मीडियल और इंफीरियर लैटरल पे प्ले करें या सेंट्रल एरिया में। Now we have a second injection where we need to correct the medial fat pad. तो ये हम सेकंड सर्कल पे सॉरी ये एंड वाले पॉइंट पे हमने कोई अप्रोक्सीमेटली 0.025 प्ले किया है, टेपिंग कर रही है ऊपर। आई होप यू आर ऑल विद मी। अच्छा, अब इसमें दो, क्योंकि थोड़ी सी मैंने स्पेस छोड़ी, अब हम किस तरह से प्ले कर सकते हैं एक और टेक्निक, वो ये है कि हम वी कैन गो फ्रॉम दिस साइड टू करेक्ट इट। वो थोड़ा सा अनऑर्थोडॉक्स है बट इट कैन ऑल्सो गिव। मिसाल के तौर पे अगर मैं थोड़ा सा इसको यहाँ से इंजेक्ट करूँ तो मैं अपर साइड पे थोड़ा एंगल प्रेशर थोड़ा सा एक मिनट होंगे मैम प्रेशर goes
थोड़ा सा हमें फिलर और चाहिए। जी सर, ये है इसमें तो मिल जाता है। सॉरी, इसमें है। है अच्छा इसको थोड़ा मसाज करते हैं। गुड। क्लीन करूं? ये दोनों मीडियम जी प्राइम के थे या एक ही था? दो तो सब वीडियो हार्ड वाला है। थोड़ा सा एक हैं। ये वीडियो सॉरी। गुड। मसाज, आइस पैक्स तो नहीं होगा। सो वी आर ऑलमोस्ट डन विद चीक्स। थोड़ा सा वाटर रिटेन करेंगे। वो अभी जो आपको थोड़ी स्वेलिंग नजर आ रही है 5 to 10% इट विल रिड्यूस इन लाइक 5 to 7 days टाइम, और उसके बाद इट विल टेक द रियल शेप। सो यू आस्क पेशेंट टू स्लाइटली मसाज फॉर 3 to 4 days twice daily with 2 fingers, not putting so much pressure on it or general care. अच्छा, डेप्थ का जरा बता दें कि आपने जो है वो क्या बोन फ्रैक्चर के पीछे आते हैं या किस तरह आइडिया? आइडियली मतलब अगर थ्योरेटिकली देखा जाए तो यस, वो कहते हैं कि बोन के बिल्कुल ऊपर, लेकिन कोशिश करें कि आपको आइडिया हो जाता है तो बोन को ज़्यादा टच ना करें, बस आप इतने डेप्थ में चले गए आपको पता है यू आर ऑलमोस्ट ऑन द बोन, एंड देन you aspirate and then start putting a filler. Pre-periosteal injection. Supraperiosteal. तो उसको बिगिनर्स के लिए तो हमें तो यही कहा गया था कि बोन टच कर। हाँ, लेकिन मैं ये प्रैक्टिकल पॉइंट वो पेरियोस्टल में हाई होगी, पेन फील होगी, यू आर सेफ देयर। जैसे मैं मजाक नहीं कर रही। हाँ, लेकिन प्रैक्टिकल वही होता है कि थोड़ा सा आप निडल के साथ जो है ना देन यू प्ले, क्योंकि फिर आपको इंजेक्ट करने में अगर उसका वो थोड़ी सी ब्लंट हो जाए या कुछ हो जाए देन यू आर अनएबल टू इंजेक्ट द फिल, बिकॉज आपको बहुत स्मूथ उसको वो करना है, वरना वो आपके इक्वल, जैसे वो डॉक्टर सादिया ने कहा कि बम्प्स आ सकते हैं, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है, और जैसे यहाँ आप चीक में प्ले कर रहे हैं तो आपको डीप का मकसद फायदा ये भी होता है कि यू आर अंडर द ज़ाइगोमैटिकस मेजर, तो माइग्रेशन ऑफ जो फिलर है, especially when you don't have choice and you are playing with a low viscosity filler, it does not migrate in that sense, it tends to get fixed here for longer period of time, तो migration नहीं होती। तो अब हम अभी आप इनका देख रहे हैं इंशाल्लाह दोनों साइड पे, शायद बिफोर का आपको शायद याद है, अब इससे हम थोड़ा सा ज़्यादा और इंजेक्ट करेंगे तो इट टेंड्स टू रियली क्लोज द यू नो योर आईज एंड योर ऑर्बिकुलर फंक्शन। तकरीबन टोटल पहले किया था 0.1 cc, फिर उसके बाद और 0.05 cc और किया मीडियल फैट पैड, और उसके बाद फिर मैंने कोई 0.25 और फिर इंजेक्ट किया, और फिर उसके बाद 0.05 नहीं 0.025 3 पॉइंट्स पे दोबारा इंजेक्ट किया। तो इसको आप कैलकुलेट कर लें बैलेंस करने के लिए। सॉरी, हाफ सीसी है इधर किस साइड पे, वेंटल
ये अच्छा, वो इजाजत ले लेना जो जिनकी इजाजत से वो कह रहे हैं कि मेंटल पहले हम नेजोलेबियल कर लें थोड़ा, फिर हाँ जी देखें ऑलमोस्ट बैलेंस है, चीख देख लिए नहीं, आप लोग करेक्शन कर सकते हैं, वो बैलेंस है। अच्छा थोड़ा सा अगर सॉरी मैं कर रहा था एंड में जरा बैठ के जी काइंडली जरा दिखाएं वॉशर। तो ये फेस के साथ वी शेप जा रहा है, तो वो जो लाइन है मार्किंग प्लीज थोड़ा सा। अच्छा अब वो बात है, प्लीज थोड़ा, थैंक यू वेरी मच। अब अगर हमने ये वाला हिस्सा प्ले करना है टीयर ट्रफ का, तो ये ज़रा मैं करने लगा हूँ ऐसे जस्ट फॉर दिस। ये ज़रा ट्रिकी है लेकिन बहुत तरीके से, थोड़ा सा चांसेस ऑफ ब्रूजिंग आर देयर, लेकिन चीक को बहुत अच्छा वो करेगा। ये अब ये है थोड़ा सा एडवांस, बट जस्ट गिव यू अ टच कि हम उसको थोड़ा बेहतर कैसे कर सकते। तो मुझे ना नीडल के साथ दीजिए, ये मैं ज़रा एक्स्ट्रा, फिर हम नेज़ोलेबियल करते हैं। लो जी, मैं अब लो जी के साथ जा रहा हूँ, थोड़ा सा टी ट्रफ को करेक्ट करूंगा जस्ट टू ब्यूटीफाई। अब मुझे ज़रा इंथुजियाज्म पैदा हुआ है तो मैंने कहा चीक के साथ इसको ठीक करूं, बिकॉज उसको करेक्ट करना भी मीडियल फैट पैड के साथ ज़रूरी है चीक के एरिया में। मीडियम 38 है। सॉफ्ट लिप वाला जो होता है, सॉफ्ट है ना, वही टीयर ट्रफ का है ना। वी आर ट्रीटिंग जस्ट टीयर ट्रफ, जस्ट अ टच, नॉट वेरी एक्सटेंसिव, बिकॉज अदरवाइज जो टीयर ट्रफ का है वो फिर यहाँ से मैं अप्रोच करूंगा कैनुला से और फिर यहाँ डीप जाऊंगा। ओके मैं अभी सिर्फ डायरेक्ट नीडल से कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा ट्रिकी। ये लो जी प्राइम का है, बिल्कुल सॉफ्ट। So I'm just supraperiosteal, right? .025. Good enough. Right side. Don't play. यहाँ तो बिल्कुल जज्बाती होना ही नहीं है, ना वाटर रिटेन हुआ ना कुछ, ये खुद अपना टाइम ऐसे लेगा उसके साथ, और ये चीक के साथ मर्ज करेगा। टी ट्रफ जस्ट सुपरापेरियोस्टियल, बिल्कुल ये बोन के ऊपर जी, बोन के ऊपर। देन ग्रेजुअली टेक इट आउट, बट नॉट मच ऑफ अ नीडल, जस्ट ये देखें, ये मैंने अभी नीडल प्लेस की है ना, दिस इज जस्ट ओवर द बोन, और मुझे रेजिस्टेंस क्या दे रहा है, मीडियल एंड ऑफ द ऑर्बिकुलरिस रिटेनिंग लिगामेंट, राइट। ये मुझे रेजिस्टेंस फील हो रही है, तो यहां थोड़ा सा मैं फिर अब थोड़ा सा मैंने पुल आउट किया एंड आई हैव टेकन इट आउट।
ये वाली पोजीशन भी ज़रूर कर लिया करें प्रैक्टिकल आपको लेवल ऑफ जो जिसे कहते हैं लिफ्टिंग वो आपको बेहतर कई दफ़ा नज़र आता है, नॉट फ्रॉम जस्ट दिस एंगल। रेडी? बेटा अप्रॉक्सीमेटली 0.025, बहुत उससे भी कम बल्कि शायद ड्रॉप्स आई वुड से, उसको आप कल। सॉरी बेटा जी, थोड़ा सा किया है, बहुत लाइट सा, उसके बाद छोड़ दिया। वो आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रैक्टिस, थोड़ी ग्रिप आ जाएगी, लेकिन आपको पता है कि मैंने मेन जो बोलस है वो मैंने बिल्कुल जस्ट सुपरा पेरी ऑस्ट्रेलिया ओवर द बोन किया है, उसके बाद मैं थोड़ा सा पुल करके हल्का सा, एंड देन यू लीव इट इन द मिड। 0.025 बल्कि लेस देन दैट, बल्कि मैंने यहाँ तो बहुत ड्रॉप्स के साथ प्ले किया है मैंने। वो देखें वो खुद अपना एंगल लेगा। अब आप देखें अगर थोड़ा सा क्लोज करें, या जिस तरह ये आप देखना चाहते हैं टीयर ट्रफ का, आपको इसमें स्वेलिंग नजर नहीं आएगी बिकॉज स्किन इज थिन। अगर जरा सा आपने गलत विस्कोसिटी वाला हाई जी प्राइम यूज किया या गलत आपका डेप्थ भी गलत हुई ना, उसने एकदम बल्ज कर जाना है, पता चल जाएगा कि ये टीयर ट्रफ नहीं छोड़ता। So it gives you a very clear indication कि either you have injected in the wrong plane or you have injected a higher amount, क्योंकि इसने अभी 5% वाटर भी रिटेन करना है। तो अब आप 2 वीक्स टाइम देखेंगे कि बहुत अच्छा बैठेगा और फिर ये चीक के साथ बेंड करेगा, अदरवाइज वो ज़्यादा संकन आइज लगती हैं। दिस इज एस्थेटिक जो मैं मतलब रोज सीखता हूँ या बता रहा हूँ थोड़ा, बस ये चीज़। इसको ज़रा कैप कर दें हैं। लो जी, अब हम आते हैं नेज़ोलेबियल फोल्ड की तरफ। तो अब तक ठीक रहा? कुछ आपको कुछ आइडिया थोड़ा सा? मुझे वो अब हाई जी प्राइम पर चाहिए, तो वैसे वो मीडियम भी रेडी रखिएगा। अभी आपको नेज़ोलेबियल फोल्ड की भी कुछ थोड़ी सी एक्साइटिंग चीजें, कुछ प्रैक्टिकल पॉइंट्स। विद कैनुला ही होगा ज़्यादा, और एक नीडल के साथ होगा, वो मैं दूसरा पॉइंट बता रहा हूँ। अभी हम यहाँ मार्किंग करेंगे, वो जो माशाल्लाह प्रैक्टिकली हम बताएंगे, जो डॉक्टर फरहाना ने इतना क्लियरली और इतना एलेबोरेटली उसको एक्सप्लेन किया है वेसल्स को। तो ज़रा प्रैक्टिकल देखेंगे कि वहाँ हमने ट्रांसफर फेशियल आर्टरी को मार्क किया था और कोई हमारी मेजर ब्लीडिंग नहीं हुई एक्सेप्ट ट्विक्स। मार्किंग पेंसिल, अच्छा नेज़ोलेबियल फोल्ड को यहाँ आप क्या ग्रेड करते हैं? कोई बहुत ज़्यादा डीप नहीं है। यस थोड़ा सा बताने हाँ करते हैं। अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है, प्लीज़ अगर इफ आई नीड टू हैव योर अटेंशन, थोड़ा सा हम करेंगे। पहले हम ज़रा इस यहाँ, क्योंकि आप लोगों ने मार्किंग तो करनी है, तो फेशियल आर्टरी को देखते हैं कि ये ग्रूव से ये ग्रूव है। अच्छा वो रेड नहीं है, कोई ब्राउन? अब हम दोबारा बेचारे सुपीरियर ऑर्बिटल फोरामेन को हम दोबारा मार्क करते हैं, और यहां से हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं। मैंने कहा मैं ज़रा आपको इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन बताऊं। थोड़ी सी रेड, अब मुझे वो रेड वो दीजिएगा, रेड अगर रेड है तो रेड दे। ये बस ये रेड है, कोई और है?
तो हम ज़रा फेशियल आर्टरी को ज़रा मार्क कर लें, फिर मैं थोड़ा सा उसकी आगे सेफ चलने के लिए हम यहाँ से, ये आपकी फेशियल आर्टरी मूव कर रही है, ओके। अब ये इंफ्रा ऑर्बिटल या सॉरी सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन को नीचे मार्क करने का मकसद ये था कि यहाँ तक ये डीप है और ये ज़ाइगोमेटिकस मेजर से नीचे से वर्ड निकल के अब यहाँ से ये एंगुलर बन रही है और ये सुपरफिशियल हो रही है। जिस पॉइंट पे ये मर्ज करती है द लाइन ड्रॉन फ्रॉम सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन, यहाँ से ये सुपरफिशियल हो रही है। अब यहाँ आके ये लैटरल नेजल ब्रांच देती है, ओके। यहाँ तक ठीक है। द प्रॉब्लम इज, करते वक्त जहन में जरूर रखें, कई दफा ये अब ये आपका नेजोलेबियल फोल्ड है और ये यहां से तकरीबन लैटरल चली गई है और है भी थोड़ा सुपरफिशियल हो गई, ऑलराइट। लेकिन कई दफा इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते कि ये थोड़ा सा ऐसे आके अंदर स्नेकिंग करती है, वर्ड है ये आपके यहाँ स्नेकिंग करती है और सुपरफिशियल के बजाय थोड़ी डीप हो जाती है। दैट इज समथिंग वेयर वी आस्क यू टू यूजली यूज कैनुला के, कम से कम चलो अगर ऐसी एबनॉर्मेलिटी है कि, क्योंकि बहुत कम है कि आप पल्सेशन चेक करें और इस आके एंगुलर आर्टरी की पल्सेशन इतनी चेक नहीं भी होती। एक तो बात ये होगी नंबर 1। नंबर 2, यहां से अक्सर इंफ्रा ऑर्बिटल आर्टरी की एक ट्विक निकलती है जो नीचे डिप करती है ऑर्बिकुलरिस ऑरिस के नीचे, ये वाली, ये तकरीबन यहां, ये छोटी सी। तो जब हम बोन पे कर रहे होते हैं तो इस ट्विक का थोड़ा ख्याल रखें, कई दफा ये प्रॉब्लम कर सकती है। अगर आपका लेवल प्रॉपर डीप नहीं है बोन तक तो आप इसको ऑक्लूड कर सकते हैं, ये ट्विक छोटी सी, ऑलराइट। तो ये हमने थोड़ा सा कोर्स प्रैक्टिकली, इसको थोड़ा सा ठीक, ये इस वाली को जरा स्पीड स्वैप से मिटा दें, वो बस मैंने थोड़ा सा उसको स्नेक करने के लिए बताया था ताकि मुझे एरिया डोमेन क्लियर मिले। ये वाले एरिया दोनों साथ में मुझे, हाँ हाँ सॉरी, पेन तो नहीं है बस। अभी ये आपको फोल्ड ये भी हो जाएगा। उधर वाले भी थोड़ा सा कर दें, स्पिरिट स्वैप नहीं है वैसे जो हमारे पास अच्छे वाले, ये वाले, हाँ थैंक यू। इसको ज़रा गौर से ड्राई भी कर लीजिए। ये थोड़ा सा रखिएगा, ये लेटरल ओरल कॉमिशोर है ना, तो तकरीबन 1.5-1.2 सेंटीमीटर पे यहाँ तकरीबन डिवीजन हो रही होती है। तो अक्सर आप जब मेरिनेट लाइन को करते हैं तो इससे विद इन आप कर सकते हैं, वो सेफ जोन है। यहाँ से सुपीरियर लेबियल आर्टरी जो कि ज़रा डीप होती है और फिर यहाँ से इंफीरियर लेबियल जो ज़रा 3 to 4 मिलीमीटर डीप इस तरह आती है वेसल वाइज। तो मतलब थोड़ा सा वैसे ही मैंने कहा जल्दी चलो यहाँ इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट को मार्क करने का मकसद ये है कि यहाँ से डिवीजन होगी फेशियल आर्टरी की, तो आप अगर पॉइंट बनाएंगे उसको इंजेक्ट करने के लिए नेजोलेबियल फोल्ड को, तो आप कोशिश करें कि यहाँ अक्सर फिर ब्लीडिंग हो जाती है, ब्रूज बहुत बड़ा पड़ता है। तो ये इसकी डिवीजन लाइन है 1 to 1.52 सेंटीमीटर फ्रॉम द लैटरल कॉमिशन। मुझे टनलिंग ये वेस्ट, मैडम एक अब जरूरी बात, सॉरी, अच्छा इनका मीडियल फ्लैट पैड जो है नेजोलेबियल फोल्ड बनने के क्या रीजंस हैं वो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। माइग्रेशन ऑफ द मीडियल फ्लैट पैड, बट व्हाई? विद एज पेरिफॉर्म फोसा जो है वो रिट्रोग्रेड हो रहा होता है, इट बिकम्स वाइडर, तो मीडियल फ्लैट पैड को माइग्रेट करने बेचारी की मजबूरी बन जाती है। ठीक हो गया। ये मेरे हिसाब से भी मेरा बड़ा ही इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट था कपल ऑफ इयर्स बैक, जब आप थोड़ा बहुत देखते हैं, बेचारा मैं भी सीख ही रहा हूं। तो ये अगर मीडियल फ्लैट पैड यहां हैंग हो रहा होता है तो ये बहुत डीप लाइंस होती हैं एंड दैट बिकम्स मोर चैलेंजिंग, क्योंकि आप उसमें 2 फिलर भी लगा देना तो वो आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स नहीं देता। हम उसको थोड़ा सा काउंटर करेंगे। सेकेंडली जो थ्योरी ये चीज है
प्लीज ये आज मैं आपको एक टीचिंग पॉइंट, वो ये कहते हैं कि आप चीक को अच्छी तरह फिल करें तो आपका नेजोलेबियल फोल्ड इट इंप्रूव्स। इट्स टोटली रॉन्ग। 2020 में स्टडी हुई 77 केसेस में, दे इंजेक्टेड द चीक एरिया विद 3 cc's ऑफ हाई जी प्राइम फिलर बट दैट डिड नॉट रिड्यूस दी लाफ लाइंस। तो अगर डीप लाफ लाइंस हो तो उसके 3 मेथडोलॉजी जिससे वो बेहतर हो सकता है। एक तो आपका ये मीडियल फैट पैड इधर माइग्रेट किया हुआ है, ऑलराइट। तो हमने जब इसको करना है तो बिल्कुल ओवर द बोन आप फिल करें, बिल्कुल ओवर द बोन, ताकि वो फैट पैड को नीचे से थोड़ा सा लेटरल साइड पे डिस्पोज करें। दूसरा, मैं एक प्रेजेंटेशन में थोड़े से देख रहा था फैनिंग टेक्निक, शायद डॉक्टर हिना ने बताई थी। मैं थोड़ा सा विद ड्यू रिस्पेक्ट थोड़ा सा उसको डिसएग्री करूंगा, इसलिए कि जब आप ये फैनिंग टेक्निक में जाते हैं ना, और ये सबसे ज्यादा ट्रिकी एरिया होता है, तो कई दफा आप फैनिंग टेक्निक से थोड़ा सा चीक की तरफ आप फिल करते हैं और वो फिर आपको बहुत ज्यादा स्वेल्ड चीक फील लगता है, क्योंकि आप जाते हैं सुपरफिशियल फैट पैड में, और सुपरफिशियल फैट पैड इज वेरी नोटोरियस टू रिटेन वाटर, और उसमें जब फिलर चला जाता है, क्योंकि उसने हिलना भी नहीं है कहीं, तो वो फिर आपको एक एब्नॉर्मल चीक का वो देता है स्वेलिंग के। जी डॉक्टर साहब मेरी ना चीक पे स्वेलिंग हो गई है, वो कोई चीक लिफ्ट नहीं हुआ, वो चीक स्वेलिंग हुई, इसलिए फैनिंग टेक्निक यहाँ कम से कम ही यूज करें। और जिस तरह मैंने कहा कि अगर, तो हम 2 चीजों के टर्मिनोलॉजीज को यूज कर रहे हैं, एक नेजोलेबियल ग्रूव और एक नेजोलेबियल फोल्ड। फोल्ड जो होता है वो मीडियल फैट पैड के गिरने से होता है ऊपर, उसको हटाने के लिए जितना डीप आप बोन के साथ रहें वो डिस्प्लेस होगा। और दूसरा फिर हम ओवर द बोन उसको इंजेक्ट करेंगे, अभी वो एंगल भी आपको भी बताते हैं, वो करके और फिर उसके बाद आप हम करेंगे इसका, क्योंकि आपको पता है ग्रूव है लेकिन इसका फोल्ड ज्यादा नहीं, इसका मिडिल फैट पैड हैंग नहीं कर रहा, तो इसमें हम क्या करेंगे, नेजोलेबियल फोल्ड पे वी विल यूज द मल्टी लेयर टेक्निक उसको फिल करने के लिए, बल्कि शायद बहुत सुपरफिशियल भी करेंगे तो इसकी जो क्रीज है ना वो बहुत बेहतर हो जाएगी। सो फॉर ट्रेनिंग पर्पज विल गो लिटिल डीप, हालांकि आर्म्स में इसमें शायद बहुत डीप आप ना भी जाएं, but we'll try to be near the bone, and then we'll go into multi-layer technique and then superficial also to crack the nasolabial fold. So you can have a look at it and then we'll see in the end how far she has improved. But still always keep in mind, go for under correction and see what happens, and then you can always re-inject. That is a better option rather than using a hyaluronidase. Tunneling थोड़ा सा ऊपर। अब देखें यहाँ से डिवीजन हो रही है 1.5 सुपीरियर इंफीरियर लेबियल आर्टरी की, तो हम गॉज उधर भी इसको प्रेशर, सॉरी So we are just using a 22 gauge needle for tunneling. Lights. Cannula. Once you have fixed the cannula, never touch it. Becomes very septic. So it can be a problem. Don't touch the cannula. और दूसरा ये कि कैनुला बेंड नहीं होना चाहिए. Whenever you are inserting a cannula, hold just near the needle, right? So it will not bend and it can easily move. Sorry. एक साइड का तो हो गया इनका, एक साइड का हाँ ये कर रहा हूँ। वो जो उधर बैठे हैं ना वो भागने लगे प्लीज, अब वो चाय वाला भी कह रहे हैं अच्छा ठीक है, फिर ये कर लूँगा इनका। हाँ, या तो ये आप ये उधर ही कर लो। हाँ ये उधर कर ले, ये उधर कर लेते या हैं। आप इसको फिनिश कर लें, 2-3 को खड़ा करते हैं, बाकी को भी ले जाती हैं उधर। ठीक है, मैं बस एक दफ़ा इंजेक्ट कर लेता हूँ, फिर बाकी हम हाँ, कर लेंगे इसको। 2-4 मिनट। ठीक हो गया। लो जी, हम आप इंजेक्ट इसको करते हैं इंशाल्लाह, और फिर डीप जा, राइट? यही है ना? जी सर, ये थोड़ा सा सो वी आर क्वाइट डीप। अब हम इसको ऐसा से रिट्रोग्रेड फैशन में करेंगे, मैं एंटीग्रेड का नहीं, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्लूजन के चांस होते हैं। सो
I'll keep on moving. यहाँ पे वेसल का हमें पता लगेगा अगर हम वेसल में गलती से जाने लगे, क्या जो करें? सबसे डेंजरस प्लेस है ना। जी मैडम, लेकिन वो हमें जैसे लैंडमार्क्स अपने किए हैं और हम डीप है ना, क्योंकि ज़्यादातर सुपरफिशियल होती है तो वी आर क्वाइट सेफ। तो इसका नोट करना है कितना इंजेक्ट हुआ। जी बेटा, हालांकि वो मैंने बताया कि इसमें अगर आप बहुत ज़्यादा पेरियोस्टम पे ना भी हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा आप मिट कर सकते, लेकिन मैं जस्ट फॉर द ट्रेनिंग पर फिर मैं आता हूँ सुपरफिशियल में, मैं मल्टी लेयर टेक्निक करूंगा ना। अभी आपके सामने यही लेवल थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, तो मैं अभी ये तकरीबन अभी तक मैंने अभी 0.1 सीसी किया है, अभी मैं इसको थोड़ा सा ऊपर आ गया। ये देखिए अब आपको लेवल नजर आ रहा है थोड़ा सा इंजेक्शन, तो अब हमें थोड़ा सा ऊपर हूं लेवल पे, यानी कि मिड डर्मिस में, लेकिन ग्रेजुअली मैं यहां तकरीबन नीचे आते आते तक ज्यादा 0.1 सीसी यूज करूंगा रिट्रोग्रेड फैशन में। हाँ ठीक है, इसको प्रेस कर, एक जल्दी से वहां इंजेक्ट कर दूं, फिर इसको वहां कैनुला है ना। जी सर, ये ठीक हो गया अभी तक आपका, बस आखिर में बोन पे करूंगा जल्दी से, फिर टाइम, सॉरी फॉर दैट, बट हाँ जी। ये कैनुला को आप देख रहे हैं, थोड़ा सा रोटेशन, सॉरी, ये कैनुला देख रहे हैं, एट टाइम्स जरा डिफिकल्ट होता है, तो इसको प्लीज आप 2-3 दफा ना ट्विस्ट करें फिर बिफोर एंटरिंग। यहां तो जरा इजी हो गया ना, क्योंकि टनलिंग अच्छी हुई भी। इसको नीडल लगा दें बस, रिट्रोग्रेड फैशन। मैं अब जो सबसे अपर मोस्ट पार्ट ऑफ नेज़ोलेबियल फोल्ड है वो बस जरूरी मैं आपको बताने लगूंगा, उसका एंगल और बोन्स पे बड़ा जरूरी है। उसमें हमने इंफ्राऑर्बिटल आर्टरी की जो ट्विक थी उसको भी जहन में रखते हुए फिर बोन में इंजेक्ट करना है, और वहां विल कीप लाइक 45 to 60 डिग्री एंगल अकॉर्डिंग टू द फेस। अगर बहुत चबी फेस है तो विल ट्राई टू बी मोर क्लोजर टू 90 डिग्री, अदरवाइज हम थोड़ा 60 डिग्री पे उसको बोन को इंजेक्ट करेंगे, keeping the needle towards the oral commissure side to be safe, occlusion come. ये देखिए हमने ये वाला फिल करना है, इसको ओवर फिल नहीं करना। तो यहाँ से अगर हम 3-4 मिलीमीटर डीप ले लें और हम इसको एंगल थोड़ा सा उसकी तरफ रखें, और ये तकरीबन अगर आप स्किन सरफेस से देखें तो 45 to 60 डिग्री का एंगल है, और हम बिल्कुल बोन पे हैं। यहाँ तकरीबन हमने 0.1 सीसी तक जा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा सेविंग की है, राइट जी। बस अब लास्ट में इसकी टचिंग करने लगा हूँ, मैं सुपरफिशियल जाऊंगा, वो आपने सॉरी एंट्री पॉइंट के किस पॉइंट से? ये देखिए एलर नेजाई है ना नोज का। अब हमने कहा कि यहाँ एक ट्विग आती है तकरीबन 2-3 मिलीमीटर, अक्सर ऑर्बिकुलरिस जो ऑरिस मसल है उसके नीचे डिप करती है। तो हम अगर 3-4 मिलीमीटर नीचे थोड़ा सा रखे, और बोन एंगल ये आपने यहाँ से डायरेक्शन ये रखी। अब ये मैं कहना चाह रहा था कि अगर हम किसी बहुत ही फैटी लेडी का कर रहे हैं तो तकरीबन 90 डिग्री के करीब एंगल होगा। अगर हम लीन लेंगे तो हम तकरीबन 60 डिग्री पे या 45 डिग्री पे खेलेंगे फ्रॉम द सरफेस, ऑलराइट। फिर आप बोन तक जाएंगे एंड देन एस्पिरेट एंड देन इंजेक्ट, ऑलराइट। अब देखिए अगर आपको नजर आ रहा है तो मैं सिर्फ सुपरफिशियल फिलिंग करूंगा, ये आप देखिएगा, थोड़ा सा गौर तैयार रखिएगा। ये आप देख रहे हैं नीडल को, नाउ आई एम प्लेइंग वेरी सुपरफिशियल, जाऊंगा मैं इधर भी रिट्रोग्रेड ही, लेकिन ये छोटी छोटी क्रीजेस को बड़ा अच्छा फिल करता है। और
अब आप इसकी लाइन देखें सुपर, थोड़ा सा उसको टच देने, फिलर भी कम यूज होगा, तो महंगा ज़माना है। गॉस तैयार रखें, रेडी, एक और फिलर, मसाज, ये ख़त्म ही हो गया। मसाज, थैंक यू। थोड़ा सा वो हमने ज़रा इकोनॉमिकल होके बनना, थोड़ा सा एक और तो सुपरफिशियल उसको, बट यू हैव गॉट द आइडिया के सुपर करके उसको, तो हम बहुत ज़्यादा फिलर यूज़ ना करें। इनको बहुत अच्छी तरह शुक्रिया, चाय से ज़रूर पी के जाएँ, मैं ज़रा थोड़ा सा ओके सर। thank you all for being so patient. I hope I try to. Thank you very much, sir, for the very wonderful hands-on live demonstration of fillers. Now I would invite all of you for tea the scale start. After that, we go on for hands-on.